Praise the Lord. Grace and peace be upon all of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Welcome to Hosting the Ark Day 49. Today we are continuing our journey through the house of Obed-Edom, focusing on a powerful truth. When God's presence is honored, the blessings eventually becomes visible. Praise the Lord. हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अनुग्रह और शांति होस्टिंग दी आर्क डे 49 में आपका स्वागत है। आज हम ओबेद एदोम के घर की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण सत्य पर ध्यान देंगे। जब परमेश्वर की उपस्थिति का आदर किया जाता है तो उसकी आशीष अंततः दिखाई देने लगती है। 2 Samuel chapter 6:11 says, "The Lord blessed Obed-Edom and all his household." Notice that the blessing was not hidden. Something changed in his household, and others could recognize it. God's presence begins its work inside us, but eventually it produces visible fruit in our character, family, relationships, and influence. Matthew chapter 7:20 says, "By their fruit you will know them." दूसरा शमूएल 6:11 कहता है, यहोवा ने ओबेद एदोम और उसके सारे घराने को आशीष दी। ध्यान दीजिए, ये आशीष छिपी हुई नहीं थी। उसके घर में ऐसा परिवर्तन आया जिसे दूसरे लोग भी पहचान सकते थे। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे पहले हमारे भीतर काम करती है, लेकिन समय के साथ उसका फल हमारे चरित्र, परिवार, संबंधों और प्रभाव में दिखाई देने लगता है। मत्ती 7:20 कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। The Bible specifically says that Obed-Edom and all his household were blessed. This shows us that when one person begins to honor God's presence, it can influence the atmosphere of an entire family. Joshua declared in Joshua 24:15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Our relationship with God should not remain a personal experience, it should become a family culture. बाइबल विशेष रूप से कहती है कि ओबेद एदोम और उसका सारा घराना आशीषित हुआ। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना शुरू करता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार के वातावरण पर पड़ सकता है। यहोशू 24:15 में ये घोषणा की गई, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध केवल व्यक्तिगत अनुभव बनकर नहीं रहना चाहिए, वो हमारे पूरे परिवार की आत्मिक संस्कृति बनना चाहिए। 2 Samuel 6:12 says that David was told that the Lord had blessed Obed-Edom because of the ark of God. The ark represented God's presence, covenant, and government among his people. Obed-Edom did not use God's presence to get something from God. He simply received what God entrusted to him and honored it. We must never seek God's presence only because we want His blessings. We don't pursue the presence because of what is in His hand. We pursue Him because who He is. Amen. दूसरा शमूएल 6:12 बताता है कि दाऊद को बताया गया कि परमेश्वर ने ओबेद एदोम को परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी वाचा और उसकी शासन का प्रतिनिधित्व करता था। ओबेद एदोम ने परमेश्वर की उपस्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं किया, उसने उस उपस्थिति का सम्मान किया जो परमेश्वर ने उसके घर में सौंपी थी। हमें परमेश्वर की उपस्थिति केवल इसलिए नहीं खोजनी चाहिए कि हमें उसकी आशीष चाहिए। हम उसकी उपस्थिति इसलिए नहीं खोजते कि उसके हाथ में क्या है, हम उसे इसलिए खोजते हैं क्योंकि वो स्वयं कौन है। Something remarkable happened next. The Bible says it was told King David. Obed-Edom was not promoting himself. He was simply faithful in hosting the presence of God. But his private experience became a public testimony. This is very powerful. You don't always have to announce what God is doing in your life. When God produces genuine fruit, the fruit will speak. इसके बाद एक अद्भुत बात हुई। बाइबल कहती है राजा दाऊद को ये समाचार दिया गया, ओबेद एदोम स्वयं को प्रसिद्ध बनाने का प्रयास नहीं कर रहा था, वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति को विश्वास योग्यता से होस्ट कर रहा था, लेकिन उसका निजी अनुभव सार्वजनिक गवाही बन गया। ये बहुत सामर्थ्य बात है। आपको हर समय ये घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है। जब परमेश्वर सच्चा फल उत्पन्न करता है तो वो फल स्वयं बोलता है। Obed-Edom's journey shows us a pattern. Private encounter, transformation, visible fruit, public testimony. The 3 months in his house may have seemed like a hidden season, but God was doing something significant.
never despise your hidden season. Your prayers, your obedience, your family altars, and your faithfulness may not be visible to everyone, but God sees them. ओबेद एदोम की यात्रा हमें एक क्रम दिखाती है। निजी अनुभव, परिवर्तन, दिखाई देने वाला फल, सार्वजनिक गवाही। उसके घर में बिताए गए 3 महीने शायद एक छिपा हुआ समय लग रहे थे, लेकिन परमेश्वर उस समय में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था। इसलिए अपने छिपे हुए मौसम को कभी छोटा मत समझिए। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आज्ञाकारिता, आपके घर की प्रार्थना वेदी और आपकी विश्वास योग्यता शायद सबको दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर उन्हें देखता है। The most powerful part is that Obed-Edom's testimony helped David move forward again. When David heard that the ark was blessing Obed-Edom's house, he went and brought the ark into the city of David with gladness. One household became a message to a nation. God's presence is holy. God's presence must be honored, and God's presence brings blessing when it is received according to His order. सबसे सहमति बात यह है कि ओबेद एदोम की गवाही ने दाऊद को फिर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब दाऊद ने सुना कि वाचा का संदूक ओबेद एदोम के घर को आशीष दे रहा है, तो वो संदूक को आनंद के साथ दाऊदपुर में ले आया। एक घर पूरे राष्ट्र के लिए संदेश बन गया। परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र है, उसकी उपस्थिति का सम्मान करना आवश्यक है, और जब उसकी उपस्थिति को उसके क्रम के अनुसार ग्रहण किया जाता है, तो वो आशीष का कारण बनती है। May our homes become houses that host His presence. आइए हमारे घर ऐसे घर बने जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति का आदर हो और जहाँ उसकी महिमा दिखाई दे। And may people look at our lives and say, और लोग कहें कि आपका जीवन देखकर the Lord is doing something in that house. कि परमेश्वर आपके घर में कुछ कर रहा है। Grace and peace be upon all of you. परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह शांति दे।